Hello, my dear students. We'll discuss today the topic hydrocarbons of organic chemistry. In the class 10th, there is the chapter carbon and its compound. और कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर the one of the topic that we are having, it is hydrocarbons. The compounds of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. यहाँ पर कार्बन भी एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है. Between two non-metals there is sharing of the electrons, and the chemical bond which is formed by the sharing of the electrons is known as covalent bond. Hydrocarbons जो होंगे they will be non-polar covalent compounds, and water is polar in nature, so they will be insoluble in water. So they will be insoluble in water. And the source of hydrocarbons is petroleum. That is what the crude oil. The source of hydrocarbons is petroleum. The crude oil जो कच्चा तेल है, it is the source of hydrocarbons. Hydrocarbons है, they are of two types. That is what the saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. The saturated hydrocarbons are those which have the single covalent bond between carbon and carbon. They are the saturated hydrocarbons. मतलब यहाँ पर आपकी कार्बन चेन है, वो 5 कार्बन की है, 10 कार्बन की है, 100 कार्बन की है, 200 कार्बन की है. Between two carbon atoms there is only the single covalent bond. They will be the saturated hydrocarbons. And unsaturated hydrocarbons are those, they are having the double covalent bond between carbon and carbon, or the triple covalent bond between carbon and carbon. They are the unsaturated hydrocarbons. मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपकी कार्बन चेन है वो 10 कार्बन्स की है, 20 कार्बन्स की है, 100 कार्बन्स की है. उसमें कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड हो बिटवीन 2 कार्बन्स तो वो अनसैचुरेटेड है. भले ही 10 जगह, 15 जगह, 20 जगह डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो बिटवीन 2 कार्बन्स तो वो भी अनसैचुरेटेड है. और या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, मतलब कार्बन चेन है वो 5 कार्बन की है, 10 कार्बन की है, 15 कार्बन की है, 100 कार्बन की है, 200 कार्बन की है. बिटवीन 2 कार्बन एटम्स देयर इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कम से कम एक जगह होना चाहिए. भले ही 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, या हमारी जो कार्बन चेन है उस कार्बन चेन के अंदर कुछ जगह डबल बॉन्ड है, कुछ जगह ट्रिपल बॉन्ड है, वो सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। The hydrocarbons which are saturated and they are having single covalent bond between carbon and carbon are represented by the series of compound, and that is what alkene. So that is what alkene. That is what alkane. And the unsaturated hydrocarbons which are having the double covalent bond between carbon and carbon are represented by the series of compound, and that is what alkene. And the unsaturated hydrocarbons which are having the triple covalent bond between carbon and carbon are represented by the series of compound, and that is what alkyne. तो सामने आपके पिक्चर क्या आ गई है कि हमारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उन हाइड्रोकार्बन्स को 3 सीरीज में बांट दिया गया है, दैट इज़ व्हाट अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। कि हमारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उन हाइड्रोकार्बन्स को 3 सीरीज के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया है, दैट इज़ व्हाट अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ओके, नाउ अब आपको एक केमिस्ट्री की काउंटिंग सीखनी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मैथ नंबर ऑफ कार्बन 1, एथ number of carbon 2, prop number of carbon 3, but number of carbon 4, pent number of carbon 5, hex number of carbon 6, hept number of carbon 7, oct number of carbon 8, non number of carbon 9 and dec number of carbon 10. On the basis of number of carbon, अगर कार्बन 1 है तो दैट इज मैथ, 2 है तो दैट इज एथ, 3 है तो दैट इज प्रॉप, 4 है तो दैट इज ब्यूट, 5 है दैट इज पेंट, 6 है दैट इज हेक्स, 7 है दैट इज हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। ये हमारा केमिस्ट्री की काउंटिंग है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ कार्बन्स को लेते हुए हम अल्केन के मेंबर्स बनाएंगे, अल्कीन के मेंबर्स बनाएंगे और अल्काइन के मेंबर्स बनाएंगे। तो देखें यहाँ पर सफिक्स है ANE जो नाम के बाद में आएगा, दैट इज व्हाट ANE। तो हम क्या करेंगे कि इन सब के साथ में ANE जोड़ते जाएंगे तो वो सब अल्केन के मेंबर्स बन जाएंगे। सो मैथ प्लस ANE दिस इज मीथेन, एथ प्लस ANE दिस इज इथेन, prop plus ANE that is propane, but plus ANE that is butane, pent plus ANE that is pentane, hex plus ANE that is hexane, hept plus ANE that is heptane, oct plus ANE that is octane, non plus ANE that is nonane, and dec plus ANE that is decane। तो हमने क्या किया है कि इनके साथ में हम ANE जोड़ते गए
और ये सब अल्कीन के मेंबर्स बन गए। लाइकवाइज हम अल्कीन के मेंबर्स बना लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि मैथ से अल्कीन नहीं बनेगा। मैथ से अल्कीन नहीं बनेगा, बिकॉज अल्कीन वो है कि जहां पे मिनिमम 2 कार्बन हो और उनके बीच में एक डबल बॉन्ड हो। तो अल्कीन का जो पहला मेंबर बनेगा दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ 2 कार्बन्स। दैट इज विद द हेल्प ऑफ 2 कार्बन्स। मैथ मीन्स 1 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। जब मैथ में कार्बन ही 1 होगा तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा कार्बन अवेलेबल ही नहीं होगा। सो विद द मैथ मैथीन नहीं बनेगा। अब आपने रेस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स बनाना है और यहां पर सफिक्स है ENE। तो हम क्या करेंगे, इन सब के अंदर ENE जोड़ते जाएंगे। दे विल बिकम द मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स। सो एथ प्लस ENE दैट इज एथीन, prop plus ENE that is what propene, but plus ENE that is what butene, pent plus ENE that is what pentene, hex plus ENE that is what hexene, hep plus ENE that is what heptene, oct plus ENE that is what octene, non plus ENE that is what nonene, and dec plus ENE that is what decene. तो ये हमारे अल्कीन के मेंबर्स बन गए हैं। लाइकवाइज अल्काइन के मेंबर्स बनाएंगे। यहां पे सफिक्स है YNE, नाम के बाद में आएगा YNE। तो हम इन सब के अंदर YNE जोड़ते जाएंगे एंड यू विल गेट द मेंबर्स ऑफ अल्काइन। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ भी मैथ से पहला मेंबर मिथाइन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने कंडीशन दी है कि देयर शुड बी a triple covalent bond between 2 carbons. There should be a triple covalent bond between 2 carbons. मतलब 2 कार्बन कम से कम हो और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। मैथ मीन्स कार्बन ही 1 है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा किससे? तो इसका भी फर्स्ट मेंबर विद मीथेन मैथ पॉसिबल नहीं होगा। ओके और इसीलिए मीथेन को बोला गया है फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑल द हाइड्रोकार्बन्स। मीथेन इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑल द हाइड्रोकार्बन्स। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑल द हाइड्रोकार्बन्स। भाई हमारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उन सारे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर विद वन कार्बन ओनली मीथेन इज पॉसिबल, जबकि अल्कीन के अंदर मैथीन नहीं बनेगा, अल्काइन के अंदर मिथाइन नहीं बनेगा। 1 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन ओनली मीथेन इज पॉसिबल, दैट्स व्हाई मीथेन इज नोन एज फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑल द हाइड्रोकार्बन्स। It is the leader of all the hydrocarbons. It is the first member of all the hydrocarbons, or it is the monitor of all the hydrocarbons. Now, अब हम क्या करेंगे कि एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इसके अंदर
YNE जोड़ते जाएंगे तो दे विल बिकम द मेंबर्स ऑफ अल्काइंस. सो एथ प्लस YNE, दिस इज व्हाट इथाइन. Prop plus YNE, this is what propine. But plus YNE, that is what butane. Pent plus YNE, that is what pentane. Hex plus YNE, that is what hexane. Hept plus YNE, that is what heptine. Oct plus YNE, that is what octine. Non plus YNE, that is what nonine. And dec plus YNE, that is what decine. इस तरह से ये हमारे अल्काइंस के मेंबर्स बन गए हैं. नाउ अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बनाएंगे. एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बनाने के लिए अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है इट इज CnH2n+2, जहाँ पर n है नंबर ऑफ कार्बन, और अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n, और अल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n-2. सो दीज आर द जनरल फार्मूलाज. अब हम क्या करेंगे, ये जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम n के वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन प्लेस करते जाएंगे और यू विल गेट देयर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज. जैसे कार्बन n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन. मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन है 1, तो 1H2 इंटू n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन. नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर 1 + 2, तो ये हो गया है CH4. 2 1 जा 2 and 2 4, तो CH4. दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन. आप उसी तरह से इथेन का निकालो. C as it is, n means the number of carbon. इथेन में नंबर ऑफ कार्बन है 2, H2 इंटू n की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन. नंबर ऑफ कार्बन है 2 + 2, इट इज C2H6. Again we'll place here C. n means the number of carbon. प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन है 3, सो 3H2 इंटू n की वैल्यू 3 + 2, इट इज C3H8. 3 2 जा 6 and 2 8, तो ये हो गया C3H8. तो इस तरह से हम इन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बनाते जाएंगे. तो ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10. इसी तरीके से पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14, हेप्टेन का C7H16, ऑक्टेन का C8H18, नॉनेन C9H20 and decane C10H22. These are the molecular formulas of alkenes. Now we'll derive the molecular formulas of these hydrocarbons by using this general formula. Eth जहाँ भी आएगा, eth means carbon 2. prop जहाँ भी आएगा that means carbon 3. So C as it is, n means number of carbon. Ethane में number of carbon 2, H2 into 2, it is C2H4. तो likewise आप सबके इनके ड्रॉ करते चलो. ये आ जाएंगे C3H6, C4H8, C5H10,
C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 and C10H20. अब हम अल्काइंस के मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज निकालेंगे. सो अगेन यूज दिस जनरल फॉर्मूला. CN मीन्स नंबर ऑफ कार्बन. एथ जहाँ भी आ गया कार्बन 2, प्रॉप जहाँ भी आ गया कार्बन 3, ब्यूट जहाँ भी आ गया कार्बन 4, पेंट जहाँ भी आ गया कार्बन 5. सो C2H2 into 2 minus 2, it is C2H, 2 2 जब 4, 4 में 2 गया तो 2, तो C2H2. इसी तरीके से हो जाएगा प्रॉप यानी कार्बन 3, CN मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर 3H2 into 3 minus 2, तो C3H, 3 2 जा 6, 6 में 2 गया तो रह गया 4. लाइकवाइज ब्यूटाइन का C4H6 पेंटाइन, C5H8 हेक्साइन, C6H10 हेप्टाइन, C7H12 ऑक्टाइन, C8H14 नोनाइन, C9H16 डेकाइन, C10H18. These are the molecular formulas. मैंने आपको क्या सिखाया है? We'll use this general formula and we'll calculate the molecular formulas of the alkane hydrocarbons by using this general formula CnH2n. These are the molecular formulas of alkene, and by using this general formula, these are the molecular formulas of these alkynes. अब यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर आपको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि यू आर यूजिंग द जनरल फॉर्मूला एंड यू आर कैलकुलेटिंग मोलिकुलर फॉर्मूला. आपको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा. आपको क्विकली आना चाहिए कि पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है. तो इसका एक सीधा सा तरीका है कि जैसे मैं ईथेन को लेके चलता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, एथ मीन्स कार्बन 2, जो हाइड्रोजन का नंबर होगा इसका डबल करके 2 जोड़ना है. तो 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6. अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन का नंबर होगा कार्बन का जस्ट डबल, तो 2 का डबल 4. और अल्काइंस का होगा कार्बन का डबल करके -2, तो 2 का डबल 4, 4 में 2 गया तो 2. लाइकवाइज आप प्रोपेन को लें. प्रोपेन यानी कार्बन 3, हाइड्रोजन का नंबर होगा 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8. और प्रोपीन यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर होगा कार्बन का जस्ट डबल, तो 3 का डबल 6. और अल्काइंस के अंदर 3 का डबल 6, 6 में 2 गया तो 4. तो इस तरह से आपको याद रखना है. अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन का नंबर होगा कार्बन का डबल करके +2. अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन का नंबर होगा कार्बन का जस्ट डबल. और अल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन का नंबर होगा कार्बन का डबल करके -2. आपने सिर्फ ये याद रखना है कि मैथ यानी कार्बन 1, एथ यानी 2, प्रॉप यानी 3, ब्यूट यानी 4, पेंट यानी 5, हेक्स यानी 6, हेप्ट यानी 7, ऑक्ट यानी 8, नॉन यानी 9 एंड डेक यानी 10. बस ये आपको आना चाहिए. ओके, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उन हाइड्रोकार्बन्स को हमने 3 सीरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है. दैट इज व्हाट अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस. अब यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं कि जैसे हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर हाइड्रोकार्बन्स टू हायर हाइड्रोकार्बन्स. तो होगा क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इट इंक्रीजेस.
ये आपको ट्रेंड ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसको हम प्रैक्टिकली डिस्कस करें तो हमारा जो नेचुरल गैस है, द नेचुरल गैस इज मेड अप ऑफ मीथेन प्लस इथेन प्लस प्रोपेन, ये तीनों गैसेस है तो वो नेचुरल गैस है। और अगर हम पेट्रोलियम गैस की बात करें तो पेट्रोलियम गैस है, इट इज मेड अप ऑफ इथेन प्लस प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। तो यहाँ तक है गैसेस, फिर आगे होंगे लिक्विड्स, फिर आगे होंगे सॉलिड्स। बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर हाइड्रोकार्बन्स टू हायर हाइड्रोकार्बन्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेस। ये आपको एक ट्रेंड ध्यान रखना है। सम मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कि जो अल्केन होगा इट इज लीस्ट रिएक्टिव, इट इज लीस्ट रिएक्टिव। हम ये कहें कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन एंड अल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइन। द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज, ऐसा क्यों? अल्केन्स में बिटवीन कार्बन एंड कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, it does not breaks easily, so alkenes are least reactive. Because in the covalent compounds the reactivity depends the ease with which the bonds breaks and forms. In the alkenes between the carbon and carbon it is a single covalent bond, this is a strong bond, it does not breaks easily, so it makes them least reactive. Between the alkenes, in the alkenes between carbon and carbon there is double covalent bond. The one bond is sigma bond, another one pi bond. जो pi bond है वो एक weak bond है, weak bond है it breaks easily, it breaks easily, it make it more reactive. Alkynes है they are most reactive क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ वीक बॉन्ड्स अल्काइंस के अंदर मैक्सिमम है, सो इट मेक देम मोस्ट रिएक्टिव। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। सम मोर इंफॉर्मेशन कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है दे आर नोन एज पैराफिन्स, दे आर नोन एज पैराफिन्स बिकॉज दे हैव लेस अफिनिटी फॉर द रिएक्शन, so they are known as paraffins। हमारा जो घी होता है, घी के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है दे आर नोन एज ऑल्फिन्स, दे आर नोन एज ऑल्फिन्स बिकॉज दे फॉर्म्स ऑयल लाइक डेरिवेटिव्स, सो दे आर नोन एज ऑल्फिन्स। तो ऑयल्स के अंदर होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और घी के अंदर होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। So my dear students, this is all about the hydrocarbons. Thank you.